Hello and welcome. It's a new video today. This is the video that is uploaded now, and you are watching Voice at British English with Yasin. This channel provides you better video qualities regarding English grammar, spoken English, and books, English books especially. I think you watch the videos, but you guys don't like and share the videos. I don't know why. Although you must know that I am an English teacher and I have been teaching English classes, English students for the last 15 to 17 years, and I have a lot of experience. I have faced many students in my class, and I know the way how to teach the students and how to know their weakness or weak points and how to solve the points. But you guys do not share, do not watch the videos. I don't know why, although it's a qualityful video, and there are many contents there, and I am delivering videos in different parts, in different segments. I just choose one of the chapters from grammar and go through structure wise, through part wise, so that you guys could understand in a better way. And my motive is to provide you a better English education, and that's why I just make videos and just upload it, share the videos with you all. That's why I request you to watch the video, and if it's a quality full video, if it's liked by you, if it's meaningful video, you must like the video. If it's good enough to share, you must share your friends, your colleagues, your friends, your kith and kin. It will motivate me to make more videos, and that's why this is a new video for you. And I come before you once a week. I am busy in some work. As you know that I am in the government department, and that's why I have no enough time to make more videos. But I promise you to bring videos with you, a quality full video. The videos will be quality. The motive of this video is to provide you confidence and better education, better qualityful videos. That's why I request you to please subscribe this channel and be continued. Share it with your friends, and that will motivate me. So meet you in the next video, or till then keep watching. आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव। हालांकि एक्टिव से पैसिव के कुछ वीडियोस पहले भी आपने अध्ययन किया है, स्टडी किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं यदि सेंटेंस देयर या फिर इंट्रोडक्टरी इट आदि से रिलेटेड हो। क्योंकि जब हम कुछ ही पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं होता है अपने आप में। और आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव हर प्रकार के सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या फिर WH क्वेश्चन। और इसके अतिरिक्त सेंटेंस अगर टेंस के हों तो भी उसका पैसिव हमें बनाना पड़ता है। अगर सेंटेंस कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हों, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हों, इसका भी पैसिव हम बनाते हैं। तो इसी के अंतर्गत इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित अगर कुछ सेंटेंसेस हैं तो इसका भी हम पैसिव करते हैं, और इंट्रोडक्टरी इट से भी संबंधित अगर कुछ सेंटेंसेस होते हैं तो इसका भी पैसिव किया जाता है। और अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव या फिर ऑर्डर के सेंटेंसेस होते हैं तो इसके भी एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर या इंट्रोडक्टरी इट, जिसकी चर्चा बिल्कुल नई है आपके लिए इस नए वीडियो में। तो आज का फोकस इसी चीज़ पर रहेगा कि हम इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर से सेंटेंस को, या इंट्रोडक्टरी इट और देयर से बनाए गए सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम आज इसी को देखते हैं। इससे पहले इन्फिनेटिव टाइप के कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई एम टू डू इट, आई एम टू टेक एक्सरसाइज, आई वाज टू बाय अ कार, ही हैड टू बाय अ स्कूटर एट्सेट्रा। इस तरह के सेंटेंसेस हों तो इसका किस तरह से पैसिव किया जाता है,
इसका पैसिव करने के बाद फिर हम इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर को देखेंगे। कुछ सवाल हैं लिखे हुए बोर्ड में, आई एम टू डू इट। इसका पैसिव कैसे करेंगे? आई एम टू डू इट मीनिंग है इसका मैं इसे करने वाला हूं। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो एक्टिव टू पैसिव में क्या होता है कि फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लास्ट इट है तो हम इट का प्रयोग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इट। और इज एम आर दिख रहा है तो इज एम आर ही होगा ऑफ कोर्स। इट के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। और टू डू को हम कर देंगे टू और बी का प्रयोग करेंगे। और चूंकि एक्टिव से पैसिव में वो अब थर्ड का प्रयोग किया जाता है इसलिए डू को डन। मीनिंग क्या हुआ? इट इज टू बी डन और फिर बाय का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट को लास्ट में, लेकिन फर्स्ट को लास्ट में इसी केस में नहीं रखेंगे, नॉमिनेटिव केस है तो ऐसा ना हो कि आई को आई ही लिख दें, ऐसा नहीं, बल्कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी होगा। तो इसलिए इसको यहां पे मी लिखेंगे, अर्थात आई एम टू डू इट इसका पैसिव हुआ, इट इज टू बी डन बाय मी। मीनिंग सेम है, एक्टिव से पैसिव में मीनिंग में कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं इसे करने वाला हूं या मेरे द्वारा किया जाने वाला है, ये हुआ। आई होप आपको समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉज टू डू इट। ही वॉज टू डू इट सेम जैसा कि ऊपर हमने किया, इन द सेम वे हम इसको भी फर्स्ट को लास्ट में लिखेंगे या लास्ट को फर्स्ट में लिखेंगे। तो लास्ट में इट है तो इट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे लिखने में यहाँ स्मॉल लेटर से लिखा गया इट, और चूंकि यहाँ पे शुरू में लिखा जा रहा है स्टार्टिंग, तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना है। तो इट लिखा हमने, और चूंकि यहाँ पे एम वाला था, इज आर एम वाला था, और यहाँ पे वाज वेयर वाला है, तो इट के साथ में वाज का प्रयोग होगा, इट वाज। और फिर टू डू को टू और बीच में बी का प्रयोग करेंगे, और डू का वर्ब थर्ड डन का प्रयोग कर देंगे। इट वाज टू बी डन और बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो हिम लिखेंगे, अर्थात इसका पैसिव हुआ इट वाज टू बी डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैड टू डू इट, उसे यह करना पड़ा या उसे यह करना था। दोनों ही मीनिंग इसका आप निकाल सकते हैं। सी हैड टू डू इट, उसे यह करना पड़ा। इसका जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो लास्ट को शुरू में लिखेंगे इट, और फिर हेड है तो हेड में कोई ऑप्शन नहीं है, हेड में सिर्फ हेड होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। आपने टेंस में इसे भली भांति से जाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सब में हेड का प्रयोग किया जाता है। तो इट हैड, और टू डू को टू और बी का प्रयोग करेंगे इस बीच में। ये ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंसेस में टू प्लस वर्ब वन जो भी क्रिया होगी बीच में बी का प्रयोग होगा, और जो क्रिया है चाहे यहाँ पे बी हो, डू हो, सॉरी, यहाँ पे डू है या फिर डू है, इसको डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन, तो टू बी डन, डन का प्रयोग करेंगे और बाय का, और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ये आप भली भांति जानते हो, तो हर का प्रयोग मैंने किया, अर्थात इट हैड टू बी डन बाय हर। सी हैड टू डू इट, उसे यह करना पड़ा या उसके द्वारा किया जाना पड़ा, ये इसका मीनिंग हुआ। आइए लास्ट देखते हैं, माई ब्रदर वॉज टू बाय अ कार। माई ब्रदर वॉज टू बाय अ कार, मेरा भाई एक कार खरीदने वाला था। तो फिर यहाँ फर्स्ट को लास्ट करेंगे और लास्ट को फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टिव से पैसिव में ऐसा ही करते हैं, तो अ कार लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कार, और इसके बाद वाज वर वाला सेंटेंस है, तो अ कार सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो अ कार क्लियर है, एक कार, इसलिए अ कार वाज, अ कार वाज। और फिर टू बाय है तो इसको हमने करना है टू, और बीच में बी का प्रयोग करेंगे और बाय को बना देंगे, बाय का वर्ब थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाय बॉट बॉट, तो टू बी बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट, और बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर बाय माई ब्रदर है तो आप बाय माई ब्रदर का प्रयोग करेंगे। तो देखा ना आपने कितना आसानी से एक्टिव से पैसिव हुआ। इससे पहले भी आपने टेंस में पढ़ा था एक्टिव से पैसिव, लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंसेस हो तो इसको एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है ये पीछे के वीडियो में इसलिए ऐड नहीं किया था कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अब मैं बता रहा हूं। और जस्ट इसको देखने के बाद आइए फिर आप देख लीजिए। ये तो आई एम टू डू इट या आई वाज टू डू इट इस तरह का था। इंट्रोडक्टरी देयर के सेंटेंसेस है तो इसका किस तरह से किया जाता है। तो ये कुछ देयर से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं और इसका मीनिंग है देयर इज नो टाइम टू लूज।
खोने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आइए इसका पैसिव करते हैं, देयर इज नो टाइम लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज। तो इसका हम पैसिव करेंगे, देयर इज नो टाइम, और टू लूज को टू बी लॉस्ट कर दीजिए, बस इतना सा करना है और इसका पैसिव हो गया। देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। मीनिंग सेम हुआ, सिर्फ कहने का थोड़ा सा तरीका यहां पे बदल गया। टू लूज को जैसा कि हमने पहले किया, इन द सेम वे टू बी लॉस्ट, यानी बीच में बी का प्रयोग किया, टू लूज का पैसिव करना था, बाकी तो ये सेम है। तो टू का टू और यहां पे बीच में बी का प्रयोग किया और लूज का वर्ब थर्ड लॉस्ट। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। करने के लिए बहुत सारा काम था, तो इसका पैसिव कैसे होगा? तो इन द सेम वे, यहां से यहां तक तो सेम रखेंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, और टू डू को टू बी डन, दैट्स इट, टू बी डन। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। एक्टिव था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारा कार्य है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारा काम किया जाने के लिए है। अक्सर हमसे कोई काम रह जाता है और उसको करना है, तो हम कहते हैं कि बहुत सारा काम अभी करने को शेष है। तो सेम मीनिंग है कि बहुत सारा काम अभी करने को बाकी है। इसी को पैसिव वे में भी कहा गया, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, रोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे किसी का होता है ना कि मेरे पास बचा ही क्या जो मेरे पास कुछ रोने के लिए है, तो मेरे पास रोने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। तो इसका पैसिव करेंगे हम, देयर इज नथिंग, और टू बी, विप का वर्ब थर्ड करेंगे वेप्ट, WEPT वेप्ट, और फोर, ये विप के साथ में फोर प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। और कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है इस तरह के सेंटेंसेस में। शुरू में आपने देखा बिल्कुल सेम होता है, और जो लास्ट में टू प्लस वर्ब वन होता है उसका पैसिव करना होता है। तो टू प्लस वर्ब वन का पैसिव कैसे करते हैं हम? टू बीच में बी का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब वन होता है वो थर्ड कर देना है, बस इतना सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन कह सकते हैं आप, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, मीन्स खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, अर्थात देयर, इसका जब पैसिव करेंगे तो देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, वेस्ट का वर्ब थर्ड वेस्टेड। एक बात तो क्लियर है एक्टिव से पैसिव में कि पैसिव जब भी होता है क्रिया की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको प्रत्येक जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वर्ब हैं उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आने चाहिए। बाकी तो ये थे देयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपके सामने हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या फिर बोलने के क्रम में, या फिर अगर आप कोई स्पीच या डिलीवरी सुन रहे हो, तो इसका मीनिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। चाहे स्पीकर एक्टिव में कहे या पैसिव में कहे, आपको दोनों ही रूप आना चाहिए, तो ही आप किसी के स्पीच को, किसी के इंग्लिश डिलीवरी को आप भली भांति समझ सकते हैं। या फिर न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में या फिर किसी भी माध्यम से यदि आपको दोनों रूप आता है तो आपको अंग्रेजी अच्छे से समझ में आएगी, और आप इसको दैनिक यूज़ में, डेली यूज़ में, डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट एक है इट, इंट्रोडक्टरी इट के सेंटेंस हो तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो इसको देखते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस इट से रिलेटेड है। अगर इंट्रोडक्टरी इट से रिलेटेड कोई सेंटेंसेस हो और उसको एक्टिव से पैसिव किया जाना है तो हम कैसे करेंगे? ये कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, यह हमारा प्रेयर का टाइम है, प्रार्थना का टाइम है। तो इसको हम पैसिव कैसे करते हैं? इसमें पहले वाला रूल्स नहीं चलेगा कि लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाले लास्ट में। वो टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस तक या कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस तक तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किया कि जितने भी एक्टिव के सेंटेंसेस हैं सबको इसी रूप में हम कन्वर्ट करेंगे कि फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में। हाँ, लेकिन टेंस से रिलेटेड या अधिकांश सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसका
फर्स्ट लास्ट होता है और लास्ट फर्स्ट होता है। लेकिन यहां पे हम इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, इसको हम बनाएंगे इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स, और टू से को यहां पे हम करेंगे टू बी सेड। इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड, टू बी सेड। तो इसका एक्टिव से पैसिव हुआ, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। अब समय है कि रेस स्टार्ट किया जा सकता है। यह रेस स्टार्ट करने का, दौड़ स्टार्ट करने का समय है। तो इसका पैसिव हम कैसे करेंगे? इट इज, सेम लिखेंगे, इट इज, क्वेश्चन क्या है? इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, तो इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस, फॉर द रेस, और टू स्टार्ट को करेंगे टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड। इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। इसका इस तरह से, इसका थोड़ा सा लॉजिक बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग है। हमने क्या किया? इट इज नाउ टाइम को सेम रखा, तो यह समय है किस चीज के लिए? तो रेस के लिए। तो हमने फोर अपने मन से ऐड कर दिया। इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस, और फिर रेस को क्या किया जाना है? स्टार्ट किया जाना है, तो टू स्टार्ट का पैसिव कर दिया हमने, टू बी स्टार्टेड। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आ जाएगा। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यानी यह एक्सरसाइज करने का समय है। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज मीन्स इट इज टाइम किस चीज का? फॉर एक्सरसाइज। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज। और टू टेक को करेंगे, टू टेक का ही पैसिव होगा, टू टेक का, यानी टू प्लस वर्ब वन है, इसका पैसिव करेंगे तो टू बी, और टेक का टेकन, तो टू बी टेक का टेकन। तो हो गया ना पैसिव, एक्टिव से पैसिव इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। मीनिंग सेम हुआ कि यह एक्सरसाइज करने का समय है, अर्थात यह टाइम है एक्सरसाइज किया जाने का। और फिर नेक्स्ट है इट इज टाइम टू बाय अ बुक, यानी यह समय है एक किताब खरीदने का। इट इज टाइम टू बाय अ बुक, तो हम करेंगे इसमें इट इज टाइम, और एक किताब खरीदने का इट इज टाइम फॉर अ बुक, और टू बाय का जब पैसिव करेंगे तो टू बी, और बाय का वो थर्ड फॉर्म होगा बॉट, बॉट मीन्स इट इज टाइम फॉर अ बुक टू बी बॉट। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस को आज हमने एक्टिव से पैसिव में बनते देखा, और इसे भी पहले के वीडियो में एक्टिव से पैसिव के कुछ सेंटेंसेस को बताया गया। चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और टोटल चैप्टर को एक ही वीडियो में करना थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज एक वीडियो, वन वीडियो आफ्टर अनदर, और एक खास स्पेसिफिक पॉइंट को जो वॉइस चैप्टर में कई एक पॉइंट्स हैं, कई एक स्ट्रक्चर्स हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज का जो सेंटेंस था वो इन्फिनिटिव पर आधारित था, और इंट्रोडक्टरी इट पे आधारित था, और इंट्रोडक्टरी देयर पे आधारित था। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लग रहा है आपको। आप वीडियो देखते हो, आप कमेंट नहीं करते हो, आपको कमेंट करने चाहिए। तो इससे हमें फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ सुधार करना है, या क्या किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, हमें जानकारी मिलेगी, और आपको वीडियो देने में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक
तरीकों का यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए आवश्यक है कि आप मुझे लिख करके अपना सुझाव दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी लगने पर ही लाइक करें, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है। आप वीडियो देखिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इससे भी पहले मैंने वॉइस से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो से वॉइस से रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो भी पसंद आएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।